Assertion reason type questions of chapter triangles for class 10. The directions in the following questions is statement of assertion A is followed by the statement of reason R. Mark the correct choice as. दो स्टेटमेंट दिए रहते हैं, एक एजर्शन और दूसरा रीजन. ठीक है. एजर्शन मीन्स एक स्टेटमेंट जो रहेगा हमको देखना होगा कि सही है गलत, और दूसरा रीजन उसका वैलिड है या नहीं. Now the option is both assertion A and reason R are true, and reason R is the correct explanation of assertion A. Okay. Next, B option, both assertion A and reason R are true. Reason R is not correct explanation of assertion A. इन दोनों ही केस में दोनों ट्रू रहेंगे, एक में रिलेटेड है और दूसरे में रिलेटेड नहीं है. सी ऑप्शन में assertion A is true but reason R is false. In D, assertion A is false but reason R is true. Okay. Now the first question is, all regular polygons of the same number of sides such as equilateral triangles, squares etc. are similar. हम जानते हैं कि all regular polygons are similar. Now reason, two polygons of same number of sides are said to be similar if their corresponding angles are equal and length of the corresponding sides are proportional. Both assertion भी true है, reason is also true, and both are interlinked. ये भी true है, ये भी true है, और ये इसका valid reason है. So now the answer is A. Okay, the option A. In question number 2, in triangle ABC, D parallel to BC and intersect AB at D and AC at E, then AB upon AD equal to AC upon AE. By using Thales theorem, this is a triangle A, B, C and DE parallel to BC. Okay. So by using corollary, we can say AD upon AB, which means AD upon AB equal to AE upon AC. AE upon AC by using corollary of BPT, basic proportionality theorem, and by reciprocal it is true. Okay. Now the reason, if a line drawn parallel to the one side of triangle to intersect other two sides in distinct points, then these sides are divided in the same ratio. Yes, this is a Thales theorem. It is true and both are linked. Okay. Now the answer option is A. Okay. Now question number 3. In a triangle ABC, D and E are the points on the sides AB and AC respectively such that BD equal to CE and angle B equal to angle C, then DE is not parallel to BC. देखिए, D and E are the points. Suppose here is a triangle ABC, BC. D and E are the points on this. Okay. And saying that AB equal to AC. If AB equal to AC, therefore angle B equal to angle C. Okay. Angle B. Then DE is not parallel to BC. ये इसके पैरेलल नहीं होगी. तो देखिए ये दोनों इक्वल हैं, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा. और अगर हम लोग इसको देखते हैं रेशियो को कि AC इक्वल टू AB हमको दिया हुआ है, BD इक्वल टू CE हमको दिया हुआ है BD इक्वल टू CE और AC इक्वल टू AB. ओके. तो नाउ AE प्लस AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AE प्लस C, और AB को क्या लिखेंगे, AD प्लस BD. ओके. AD प्लस BD. अब AE प्लस C इक्वल टू AD प्लस BD. BD हमारी किसके बराबर दी हुई है, C के. AE प्लस C इक्वल टू AD प्लस C बिकॉज BD इक्वल टू C एंड C कैंसिल. ओके. तो AD इक्वल टू AE, यहां से हमारा क्या निकल के आ रहा है, AE इक्वल टू AD. अब देखिए AE इक्वल टू AD एंड AC इक्वल टू AB. ओके. अब हम लोग क्या करेंगे, AD इक्वल टू AE, BD इक्वल टू CE.
अब रेशियो बनाते हैं इसका, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, क्योंकि ये बराबर हो गए, ये पार्ट इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो AD अपॉन AB, AE अपॉन AC। ओके, तो D इज नॉट पैरेलल टू, ये फॉल्स हुआ, पैरेलल होगा, क्यों? क्योंकि रेशियो सेम है, ये क्या होगा, लाइन्स पैरेलल होंगे। अब रीजन क्या कह रहा है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स इन ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। यस, अगर रेशियो सेम होते हैं तो ये इसके पैरेलल होती है। तो ये क्या हो गया, कौन सा रीजन चलेगा इसमें, ABCD, assertion false and reason true, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। Question number 4. In triangle ABC, D and E are the points on the side AB and AC respectively, such that DE parallel to BC and AD is to DB 5:4. Then the area of triangle DEF is to area of CFB equal to 81/25. Reason is the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of corresponding sides. This is true. एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ये इक्वल है, लेकिन इसको प्रूव करना पड़ेगा। देखिए, इन ट्राइंगल ABC D and E आर द पॉइंट्स, DE पैरेलल टू BC। अगर ये इसके पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं इन दोनों के, तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ADE और ABC दोनों ही सिमिलर हैं, तो सिमिलर होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, DE बेस अपॉन BC, साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, एंड AD अपॉन AB, AD अपॉन AB। इस ट्राइंगल की ये साइड डिवाइडेड बाई होल साइड DE अपॉन AB। ओके, अब हमको AD अपॉन DB हमको क्या दिया हुआ है, AD अपॉन DB इक्वल टू 5:4। ओके, तो नाउ AD अपॉन AB, AD upon AB equal to 5/5 plus 4. AB means whole side. Ratio whole side it means 5/9. Okay. Now area of triangle DFE. अब देखिए यहाँ पर DFF कहाँ है, इसको हम लोग मिलाएंगे, दोनों को ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर पॉइंट है F। तो DFE दिस ट्राइंगल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल CFB, इन दोनों का रेशियो, तो इन दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर होंगे, ऑल्टरनेट एंगल बराबर हैं, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। लिखेंगे ट्राइंगल DFE सिमिलर टू ट्राइंगल, कौन सा दिया हुआ है, CFB। जब ये सिमिलर हैं तो इनका एरियाज में रेशियो होगा DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CFB। करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर्स के रेशियो के बराबर होता है, तो हम लोग कौन सा ले लेंगे, DE स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। ओके, अब DE अपॉन BC, अब यहाँ पर हम लोग यहाँ से निकालेंगे, जब ये छोटे दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे तो AD अपॉन AB इक्वल टू दिस, यानी DB अपॉन DE अपॉन BC इक्वल टू 5/9। तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर होगा 5/9, इट इज इक्वल टू द 25:91, 81। चेक करेंगे 25:81 क्या दिया हुआ, क्या है हमको, 81:25, इट मीन्स इट इज फॉल्स, उल्टा होगा 25:81। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन चलेगा, डी, एजर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। Okay, and the next question 5. If the bisector of an angle of a triangle bisects the opposite side, then the triangle is isosceles. The bisector of the angle of triangle. Okay, तो बाइसेक्टर हम लोग यहाँ बना के देखेंगे। और दूसरा रीजन क्या दिया है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल। ओके, ये रीजन ट्रू है, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से इंटरनल बाइसेक्टर जो है वो डिवाइड करता है इसमें। लेकिन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, देखिए बाइसेक्ट द अपोजिट साइड देन द ट्राइंगल इज आइसोसेलस।
अगर इससे हम लोग डिवाइड करते हैं, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड, यानी इसको बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, ए बी सी डी, इफ एंगल बी ए डी इक्वल टू सी ए डी, देयरफॉर ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी, ये होती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और जब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू 1, इक्वल है दोनों, रेशियो 1, देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू 1, यानी ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, देयरफॉर द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, इट मीन्स दिस इज ट्रू। आइसोसेलेस इससे हो गया, और ये रीजन भी ट्रू है, लेकिन ये इसका डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द एंगल, द साइड कंटेनिंग द एंगल इन द रेशियो। ठीक है, ये भी सही है, बोथ आर ट्रू एंड द वैलिड रीजन, देयरफॉर द आंसर इज ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ABC triangle ABC similar to DEF such that area of ABC is 100 centimeter square and area of triangle DEF is 144 centimeter square. If AB equal to 24, then D equal to 36. ये चेक करते हैं, रीजन क्या है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस अकॉर्डिंग टू द मीडियंस। तो रीजन तो ट्रू है, ये रीजन ट्रू है, क्योंकि स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन के भी रेसिप्रोकल रहता, रेशियो में रहता है, लेकिन हमको ये चेक करना पड़ेगा कि ए बी सी और डी एफ में ये साइड डी ई 36 आती है या नहीं। देखिए, एरियाज का रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर। ट्राइंगल ए बी सी 100 बाई 144 और ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ए बी इज गिवन दैट 24 एंड डी ई स्क्वायर। ओके, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 10 बाई 12, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, इट इज इक्वल टू द 24 अपॉन डी ई। डी ई इक्वल टू 12 इंटू 24 बाई 10। जब हम इसको निकाल के लाएंगे ये कितना आएगा, यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 6 5 144 बाई 5। नाउ डिवाइड 5 28.8 और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 36, इट मीन्स असर्शन इज फॉल्स। ये 36 दिया, 36 के बराबर तो नहीं है, assertion false, reason true. Assertion is false, reason true. Therefore, the option is D. Okay. Now, question number 7. ABC is a triangle in which AB equal to AC and D is a point on AC such that BC square equal to AC into CD. Then ABC is similar to BDC by SES criteria. देखना, इसको चेक करेंगे कि सही है या गलत। और रीजन क्या है, इफ टू एंगल्स ऑफ ए वन ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू एंगल्स ऑफ द अनदर ट्राइंगल, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। दिस इज नोन एज SES सिमिलरिटी क्राइटेरिया। SES तो नहीं होता है, SES में क्या होता है, इंक्लूडिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, साइड्स आर इन द रेशियो एंड द इंक्लूडिंग एंगल इक्वल, इट मीन्स रीजन इज फॉल्स, क्लियरली फॉल्स। नाउ चेक दिस, see in this figure, this is a triangle ABC and given that D is a point on AC, if there is a point, any point on AC, and given that BC square equal to AC into CD, AC into CD, so we can write BC square is BC into BC, AC into CD. Now BC upon CD and AC upon BC. Okay, AC upon BC equal to BC upon CD और एंगल आपका जो A है, देखिए यहाँ पर देखिए BC अपॉन CD इक्वल टू AC अपॉन BC, यानी ये दो ट्राइंगल, इसकी एक इंक्लूडिंग एंगल दोनों बराबर है,
दोनों में एंगल सी कॉमन है और साइड्स में रेशियो है। यहाँ पर एंगल कौन सा बराबर है, बी सी ए इक्वल टू एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल बी सी ए, कॉमन एंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू द ट्राइंगल बी डी सी। देखिए बी डी सी सिमिलर टू द ए बी सी, क्यों? क्योंकि ये साइड्स का रेशियो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर था, इंक्लूडिंग एंगल बराबर है। तो ये क्राइटेरिया किससे है, एस ई एस। इट मीन्स assertion is true. It means assertion is true. Assertion is true, reason is false. Therefore, the option is C. Okay. Next, if the sides of a triangle are 3 and 4 and 6 centimeter long, then the triangle is at a right angle triangle. तो assertion तो साफ दिख रहा है, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होता है 3 4 5, यानी ये तो फॉल्स है, राइट ट्राइंगल नहीं हो सकता। ठीक है, reason is in a right angle triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides. ये true है। assertion is false, reason is true, therefore the right option is D. Next question, the sum of the distance of AD square plus BD square plus BE square C square is 28.36. AD square, okay, AD square means this बी डी सी बी एंड सी, इन सब का हाइपोटेनस निकालना है। और रीजन है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर। ये तो ट्रू है, रीजन इज क्लियरली ट्रू एंड वैलिड रीजन है। अब हमको एक एक करके इनको फाइंड करना है। देखिए यहीं से फाइंड करना शुरू करते हैं। बेस स्क्वायर 2 स्क्वायर इज 4 एंड 1.8 स्क्वायर इज 3.24। नाउ एड 7.24 अंडर रूट 7.24 बी डी स्क्वायर। हमको अंडर रूट नहीं निकालना, हमको सीधा ए डी स्क्वायर ही निकालना है, तो ये हो गया 7.24। बी डी स्क्वायर 4 16 स्क्वायर इज 2.56 इक्वल टू द 6.56। हाइपोटेनस स्क्वायर किसके बराबर है, इन दोनों के स्क्वायर के सम के। यहाँ भी देखिए 2 स्क्वायर इज 4 16 स्क्वायर इज 2.56 एड इट इज इक्वल टू द 6.56। इन दोनों को जोड़ेंगे ये आएगा। यहाँ पर तो 2 स्क्वायर 4 4 4 4 8। अब इन चारों को ऐड करके देखना है हमको कितना होगा। 8 7.24 6.56 एंड 6.56। नाउ ऐड ऑल दिस, ओके। 16 1 कैरी 28.36. It means it is given that 28 is true. It means assertion is true, reason is true. The right answer is A. Okay. And the last question, in triangle ABC, D parallel to BC and AD equal to 7x minus 4 centimeter and A equal to 5x minus 2 centimeter and DB equal to 3x plus 4 and EC 3x, then x is equal to 5। आपको देखना पड़ेगा ये सही है या नहीं, लेकिन रीजन क्या कह रहा है। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट ए डिस्टेंट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ, रीजन तो ट्रू है, क्यों भाई, रीजन इज ट्रू, बट चेक करना है हमको क्या, ये assertion। देखिए जब लाइन पैरेलल होती है तो एक रेशियो होता है बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। AD is 7x minus 4, AE 5x minus 2, DB 3x plus 4 and EC 3x। तो रेशियो सेम होता है तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। Now cross multiply 3 into 7 21x square minus 12x। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई 3 5 15 x square plus 20x minus 6x minus 8 by cross multiplying। Okay, 21 square minus 15 square is 6x square
20 minus 16 plus 14 minus 14 minus 26x plus 8 equal to 0. अब ये कह रहा है कि x इज इक्वल टू 5. अब हम लोग इसमें 5 पुट करके देखेंगे कि ये आंसर सही है नहीं. 5 स्क्वायर इज 25. 26 इंटू 5 प्लस 8. देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता. 150 130 प्लस 8. ओके, this is get 28. It means it is not equal to 0. Therefore, assertion is false. Reason is true. The right option is assertion is false. Reason is true. The right option is D. Okay. Thank you.